بلیٹن میں خوش آمدید۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے اس اہم خبر سے کہ ریسکیو 1122 کے مطابق گلشن اقبال بلاک 10 میں رہائشی عمارت میں دھماکے کی اطلاع ملی ہے۔ اطلاع ملتے ہی فائر اینڈ ریسکیو ٹیم بما ایمبولینس روانہ کر دی گئی ہیں۔ ریسکیو 1122 کی ٹیمیں جائے وقوع کا جائزہ لے رہی ہیں۔ ایس ایچ او کا کہنا ہے کہ مدینہ بلیسنگ بلاک 10 میں اطلاع ملی ہے، دھماکہ ہوا ہے۔ میں خود عمارت کی جانب جا رہا ہوں، ابھی تک صورتحال واضح نہیں ہے۔ اب آپ کو بتائیں گے کارونجھڑ پہاڑ کی کٹائی کے معاملے کے حوالے سے وکلاء کے درمیان اختلافات کھل کے سامنے آ گئے ہیں۔ وکلاء کی دو تنظیموں کا الگ الگ احتجاج۔ سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر سرفراز میتلو کی قیادت میں احتجاج ختم ہو گیا۔ کراچی صدر بار عامر نواز وڑائچ کی قیادت میں وکلاء کی وزیر اعلیٰ ہاؤس جانے کی کوشش، وکلاء اور پولیس کے درمیان ہاتھا پائی ہوئی، رکاوٹیں ہٹانے کی کوشش کی گئی۔ آپ کو بتاتے چلیں کارونجھڑ پہاڑ کی کٹائی کا معاملہ، وکلاء کے درمیان اختلافات کھل کے سامنے آ گئے۔ وکلاء کی دو تنظیموں کا الگ الگ احتجاج۔ سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر سرفراز میتلو کی قیادت میں احتجاج ختم ہو گیا۔ کراچی صدر بار عامر نواز وڑائچ کی قیادت میں وکلاء کی وزیر اعلیٰ ہاؤس جانے کی کوشش، وکلاء اور پولیس کے درمیان ہاتھا پائی ہوئی، رکاوٹیں ہٹانے کی کوشش کی گئی۔ اور اب خبر شامل کریں گے اور آپ کو بتائیں گے وکلاء اور سندھ حکومت کے درمیان مذاکرات کامیاب۔ عامر وڑائچ نے کہا سندھ حکومت کو 15 روز کا وقت دیا ہے۔ سندھ حکومت نے یقین دہانی کروائی ہے کہ اپیل واپس لی جائے گی۔ آپ کو بتائیں گے وکلاء اور سندھ حکومت کے درمیان مذاکرات کامیاب۔ عامر وڑائچ نے کہا سندھ حکومت کو 15 روز کا وقت دیا ہے۔ سندھ حکومت نے یقین دہانی کروائی ہے کہ اپیل واپس لی جائے گی۔ خبر شامل کریں گے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی میڈیا سے گفتگو کے حوالے سے۔ کہتے ہیں احتجاج کرنا اور عوام کو پریشان کرنا درست نہیں۔ حکومت کے پاس ہر قسم کے طریقہ کار ہیں، میں ہر ایک سے ملنے کے لیے تیار ہوں۔ 27ویں آئینی ترمیم پر وکلاء کا احتجاج سمجھ سے بالا تر ہے۔ ترمیم کا اختیار پارلیمنٹ کو ہے۔ بلدیاتی ایکٹ میں ترمیم پر بات چیت چل رہی ہے، ہم کسی کے دباؤ میں آ کر کام نہیں کرتے۔ این ایف سی کے معاملے پر ہمارے جو تحفظات ہیں ہم ان پر وزیر اعظم سے بات کرتے ہیں۔ اس کو نظر میں رکھتے ہوئے یہ ایشور کرتے ہیں کہ سندھ حکومت، پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کبھی بھی اس پہ کوئی سمجھوتا نہیں کرے گی، لیکن اسے ساتھ ساتھ ترقی کی راہ میں اگر کوئی حائل ہوتا ہے تو اس کو ہم ضرور سمجھا کے اس کی امپورٹنس دیکھ کے ہم ان کو بھی قائل کریں گے، جیسے ہم نے تھر کول کے لیے قائل کیا تھا۔ ہم نے 27ویں ترمیم دیکھے، سیاست تو ہمیشہ ہوتی ہے، سیاست بری چیز نہیں ہوتی ہے۔ ہم نے غلط کیا پارلیمنٹ نے، اس لیے سب سے پہلے پارلیمنٹ کا یہ مینڈیٹ ہے کہ وہ آئین کو ترمیم کر سکے، اور دنیا بھر میں آئین اور قانون کے ترامیم ہوتی رہتی ہیں۔ 27ویں ترمیم میں مجھے نہیں پتا کہ ان کو اعتراض زیادہ کس چیز پہ ہے۔ کانسٹیٹیوشنل کورٹس جو ہیں اس کے لیے تو یہ وکلاء خود بات کرتے تھے، اور جب پہلی کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنی ہے اس کے ججز بھی آ گئے ہیں، اور جو عام سائل کو تکالیف تھی، جیسے سب کو پتہ ہے کتنے ہزاروں کی تعداد میں
हज़ारों की तादाद में केसेस पेंडिंग थे। अब इंशाल्लाह ताला उन साइलों को आसानी होगी। तो मुझे नहीं समझ आती कि उस आसानी के खिलाफ है या उनको और क्या मसाइल हैं और उनको कैसे मसाइल होते हैं। उसके लिए ख़ास तौर पे मुझे याद है मेरे मलूम वालिद भी वकील थे और मैं जब छोटा था उन वकला की, बड़े सीनियर वकला थे, उनकी कंपनी में बैठता था तो वो कहते थे वकील अपनी आर्ग्यूमेंट से, अपनी जबान से लोगों को कायल करते हैं। अनफॉर्चुनेटली ये थोड़ा फर्क आ गया। अब मैं नहीं, ये सही है गलत है इस पे आप लोग बहस कर सकते हैं। क्या सड़कों पे निकलना या एहतजाज इस तरीके से करना ये सही है? ये वकला की जो जैसे मैं कह रहा हूँ ना, मैं छोटे होते से बहुत सीनियर वकला को देख रहा हूँ और उनकी बात ये होती है कि हम अपने दलाइल से लोगों को कायल करते हैं। और दूसरी जानिब वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब, कहा दुनिया भर में इंडस्ट्री डिमांड करती है, हमारी इंडस्ट्री तरक्की की रफ्तार को बरकरार नहीं रख सकती। सिंध में तिजारत और सरमायाकारी के नए दरवाजे खुल रहे हैं। कराची आज पाकिस्तान का सिफारती दारुल हुकूमत बन चुका है। पाकिस्तान का मुस्तकबिल नौजवानों के हाथ में है। सिंध और पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल के लिए मुश्तरका कोशिशें जारी हैं। हमने काफ़ी तरक्की की है बट इंडस्ट्री उस पेस से मेरे ख्याल से नहीं गई वो डिमांड क्रिएट करने के लिए, और इसी वजह से हमारे क्वालिफाइड लोग बाहर जाने की सोचते हैं और फिर वो बाहर जाके वो सब कर सकते हैं जो अपॉर्चुनिटी उन्हें इधर नहीं मिल रही। सो आई वुड लाइक कि इस तरीके के और इवेंट्स हों। और जहाँ तक सिंध हुकूमत का ताल्लुक़ है, हम हमेशा सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं इस टाइप के इनिशिएटिव, चाहे वो एकेडेमिया हो, चाहे इंडस्ट्री हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर में। और हम हेल्थ केयर की आज बात कर रहे हैं, मैं सामने डॉक्टर बारी को देख रहा हूँ और हमारी जो पार्टनरशिप इंडस हेल्थ नेटवर्क के साथ है, इंडस हॉस्पिटल के साथ, आई एम वेरी प्राउड टू से कि सिंध हुकूमत इंडस हेल्थ केयर नेटवर्क के बिगेस्ट पार्टनर है फाइनेंशियल टर्म्स में जो हम करते हैं। काम इनकी मेहनत इनकी है, लेकिन जहाँ पे भी इनको सपोर्ट की ज़रूरत थी कोशिश करते हैं कि वो हम सपोर्ट करें। इसी तरीके से और इदारे हैं, हमारे अपने जो इदारे हैं, जिना अस्पताल, जिना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर के एग्ज़ाम्पल है, वहाँ पे पिछले 10 साल में जिस तरीके से उसको हमने एक्सपेंड किया और हम कंटिन्यूसली करते जा रहे हैं। अभी 3-4 दिन पहले सिंध हुकूमत ने कैबिनेट में $15 मिलियन की ग्रांट इन द नेक्स्ट 2 ईयर्स उनकी अप्रूव की है। और वो कैसे की है, वो क्यों की है? इसलिए कि वो एक इमरजेंसी टावर बनाना चाह रहे थे और $35 मिलियन का उन्होंने एस्टिमेट किया था खर्चा, और जिना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर और पेशेंट एड फाउंडेशन ने मिलके $20 मिलियन ऑलरेडी अरेंज कर लिए थे। अब आपको बताएंगे वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से चाइना, अफ्रीका एंड एशिया इकोनॉमिक ट्रेड के नुमाइंदों की मुलाकात। वजीर आला सिंध ने सिंध हुकूमत की सनतों की जदीद कारी, बायोटेक्नोलॉजी और ज़राई कदरों की तरक्की के लिए अज़्म को दोहराया। चाइनीज वफ्द ने सिंध को पॉलिसी इस्तेहकाम, मजबूत इदारों और अहम इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबों के साथ तरक्की के लिए तैयार सूबा करार दिया। आपको बताते चले वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से चाइना, अफ्रीका एंड एशिया इकोनॉमिक ट्रेड के नुमाइंदों की मुलाकात हुई। वजीर आला सिंध ने सिंध हुकूमत की सनतों की जदीद कारी, बायोटेक्नोलॉजी और ज़राई कदरों की तरक्की के लिए अज़्म को दोहराया। चाइनीज वफ्द ने सिंध को पॉलिसी इस्तेहकाम, मजबूत इदारों और अहम इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबों के साथ तरक्की के लिए तैयार सूबा करार दिया। और अब खबर शामिल करेंगे। सिंध में तरक्याती मंसूबों और बल्दियाती अमले की तनख्वाहों की अदायगी के लिए बड़ा इकदाम किया गया। सिंध हुकूमत ने बल्दियाती इदारों के लिए फंड्स जारी कर दिए। महकमा खजाना सिंध ने सूबे भर की म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और टाउन कमेटियों के OZT शेयर की मद में 4.21 अरब रुपए की रकम जारी की। हुकूमत सिंध ने बल्दियाती इदारों को फंड्स दिसंबर 2025 के लिए जारी किए हैं। खबर देंगे महकमा सिंध तालीम में बड़े पैमाने पर तबादले और तकर्रियां हुई। एक ही दिन में ग्रेड 19 के 15 अफसरान के ओहदों में तब्दीली हुई। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। बरकत अली मरी को प्रिंसिपल स्पेशल एजुकेशन सेंटर सांघर तैनात कर दिया गया। जायबुन निसा चांद को
एसोसिएट प्रोफेसर हैदराबाद तैनात कर दिया गया। आपको बताते चलें, महकमा तालीम सिंध में बड़े पैमाने पर तबादले और तकर्रियों के हवाले से एक ही दिन में ग्रेड 19 के 15 अफसरान के ओहदों में तब्दीलियां की गईं। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। बरकत अली मरी को प्रिंसिपल स्पेशल एजुकेशन सेंटर सांघड़ तैनात किया गया। ज़ाइबुन्निसा चांद को एसोसिएट प्रोफेसर हैदराबाद तैनात कर दिया गया। और अब खबर शामिल करेंगे अहम इजलास के हवाले से। जिला बस्ती की कच्ची आबादियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अहम इजलास किया गया। इजलास की सदारत एडिशनल डिप्टी कमिश्नर 1 आसिम अब्बासी ने की। डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर कच्ची आबादी, KTA, वाटर एंड सीवरेज अफसरान भी शरीक। कच्ची आबादियों में पायदार तरक्की और शहरी सहूलियात के लिए जामे हिकमत अमली पर गौर। गैर कानूनी तजावुज़ात के खात्मे और आवाम को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ देने का फैसला किया गया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर 1 आसिम अब्बासी ने कहा, कच्ची आबादियों में देरीना लीज के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएंगे। मखदूश इमारतों के हवाले से खबर शामिल करेंगे। आपको बताएंगे, मखदूश इमारतों पर कमिश्नर सैयद हसन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। मखदूश इमारतों से मकीनों को महफूज रखने के लिए तरजीही इक़दाम की हिदायत की गई। SBCA को तमाम खतरनाक इमारतों का सर्वे फौरी तौर पर मुकम्मल करने का एक हुक्म दिया गया। कमिश्नर कराची ने कहा, खाली कराई गई 59 इमारतें जल्द अज जल्द मुनहदिम की जाएं। तारीखी इमारतें हेरिटेज फाउंडेशन की इजाजत के बगैर मुनहदिम ना करने का फैसला। DG SBCA ने कहा, सर्वे के बाद मखदूश इमारतें 588 से बढ़कर 610 हो गई हैं। जारी हिदायत के मुताबिक 610 इमारतों का टेक्निकल सर्वे किया जाए। खबर शामिल कर देंगे, कराची में कमर्शियल रिहायशी प्लॉट्स पर मुबैना गैर कानूनी शादी हॉल्स मार्कीज की तामीर का मामला। जिला मलीर और जिला शर्की में शादी हॉल्स की रिपोर्ट नैब कराची में जमा करवाई गई, मंजर आम पर आ गई। नैब कराची के अहकामात पर SBCA जिला मलीर में 20 शादी हॉल्स मार्कीज 12 रिपोर्ट जमा करवाई गई है। SBCA जिला शिरकी में 15 शादी हॉल्स मार्कीज 12 रिपोर्ट जमा करवाई गई है। जिला शर्की में 100 से जायद शादी हॉल का इंकशाफ हुआ। जिला मलीर में भी 50 से जायद शादी हॉल का भी इंकशाफ किया गया है। आपको बताते चलें, कराची में कमर्शियल रिहायशी प्लॉट्स पर मुबैना गैर कानूनी शादी हॉल्स मार्कीज की तामीर का मामला। जिला मलीर और जिला शर्की में शादी हॉल्स की रिपोर्ट नैब कराची में जमा करवाई गई है और वो रिपोर्ट मंजर आम पर आ गई है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे शाहिद इजाज से। जी शाहिद, बताइएगा। देखिए, कराची में कमर्शलाइज और रिहायशी प्लाट पर जो है मुबैना गैर कानूनी शादी हॉल्स और मार्केट की तामीर का मामला है, जिसमें नैब कराची के अहकाम पर जो है SBCA के जिला मलीर में 20 शादी हॉल की रिपोर्ट जमा कराई गई, जिसमें SBCA ने जो है जिला शर्की में 15 शादी हॉल्स की रिपोर्ट जमा कराई। नैब को मौसूल एक शिकायत पर DG SBCA के नाम कॉल अप जो नोटिस मुकम्मल रिपोर्ट जमा कराने का कहा गया था। जिला शर्की में जो है 100 से जायद शादी हॉल का इंकशाफ हुआ है, जिसके बाद जो है जिला मलीर में भी जो है 50 से जायद शादी हॉल का इंकशाफ हुआ है। SBCA की जानिब से जो है नैब कराची में जमा कराई गई रिपोर्ट कई शादी हॉल को बचा लिया गया। जरा यही कहना है कि रिपोर्ट में शामिल शादी हॉल की अक्सरियत की तामीर SBCA की इजाजत या मंजूरी के बगैर की गई है, जिसमें कमर्शलाइज रिहायशी प्लॉट्स पर जो है मार्केट और की मुहैया गैर कानूनी शादी हॉल्स की तामीरात के लिए भी जो है इजाजत नहीं ली गई थी। गैर कानूनी शादी हॉल और की तामीर 200 से 1200 गज के प्लॉट पर तामीर किए जाने का इंकशाफ हुआ है। नैब ने गैर कानूनी तामीरात से सरकारी खजाने को नुकसान की तफसील फराहमी की का भी कहा था। NOC मंजूरी के बगैर रफाई रिहायशी कमर्शियल प्लाट्स पर तामीरात की जिम्मेदार अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की तफसीलात भी तलब की गई थी, जिसमें खौरक नोटिस में मुस्तर प्लाट्स पर कायम मुबैना गैर कानूनी शादी हॉल मार्कीज के खिलाफ ऑपरेशन की तफसीलात भी तलब की गई थी। 2 रोज गुजरने के बावजूद भी अब तक किसी भी शादी हॉल पर कोई भी कार्रवाई नजर में नहीं आ सकी, जिसमें इदारा सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी क्या नैब कराची को मुतमईन कर सकेगी। इस पर भी जो है सुप्रीम कोर्ट के बावजूद जो है बाकायदा तौर पर पाबंदी आयद की गई थी कमर्शलाइज के ऊपर।
اس کے باوجود جو ہے شہر بھر میں غیر قانونی شادی ہالس کا سلسلہ جاری کیا، جس کے بعد جو ہے نیب نے باقاعدہ طور پہ جو ہے احکامات جاری کیے تھے اور ڈی جی ایس بی سی کو تو باقاعدہ طور پہ طلب کیا گیا تھا کال آف نوٹس مکمل رپورٹ جمع کرانے کا کہا گیا تھا۔ اس وقت بھی جو ہے ضلع ڈسٹرکٹ سینٹرل اور ڈسٹرکٹ ایسٹ اور ڈسٹرکٹ ملیر کے اندر جو ہے شادی ہالس کی کافی تعداد بتائی جاتی ہے، لیکن نیب کے اندر جو رپورٹ جمع کرائی گئی ہے ان کی تعداد کو کم کر دیا گیا ہے۔ جی بہت شکریہ شاہد اعجاز، ہمیں آگاہ کر رہے تھے۔ ضلع ملیر اور ضلع شرکی میں شادی ہالس کی رپورٹ نیب کراچی میں جمع کروائی گئی ہے جو منظر عام پر آ گئی ہے۔ کراچی میں کمرشل رہائشی پلاٹس پر مبینہ غیر قانونی شادی ہالز اور مارکیز کی تعمیر کا معاملہ ضلع ملیر اور ضلع شرکی میں شادی ہالز کی رپورٹ نیب کراچی میں جمع کروائی گئی ہے جو منظر عام پر آ گئی ہے۔ نیب کراچی کے احکامات پر ایس بی سی اے ضلع ملیر میں 20 شادی ہالز اور مارکیز بارے رپورٹ جمع کروا دی گئی ہے۔ ایس بی سی اے ضلع شرکی میں 15 شادی ہالز اور مارکیز بارے رپورٹ جمع کروائی گئی۔ ضلع شرکی میں 100 سے زائد شادی ہالز کا انکشاف ہوا ہے۔ ضلع ملیر میں بھی 50 سے زائد شادی ہالز کا انکشاف ہوا ہے۔ اور یہاں ایک اور اہم خبر سے آگاہ کریں گے۔ کلفٹن چائنا پورٹ کے قریب سے خاتون کی تشدد لاش ملنے کا واقعہ ہوا ہے۔ مقتولہ کی شناخت شہناز کے نام سے ہوئی۔ خاتون بیوہ تھی اور بلدیہ ٹاؤن کی رہائشی تھی۔ اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے احسان یونس سے۔ جی احسان، بتائیے گا۔ دیکھیں، یہ گزشتہ روز کلفٹن چائنا پورٹ کے قریب سے خاتون کی تشدد زدہ ہاتھ پیر بندی حالت میں لاش جو ہے وہ برآمد ہوئی تھی۔ اب اس معاملے میں یہ پیش رفت سامنے آئی ہے کہ پولیس نے مقتولہ کی شناخت کا عمل جو ہے مکمل کر لیا ہے۔ پولیس حکام کا یہ بتانا ہے کہ مقتولہ کی شناخت شہناز کے نام سے کی گئی ہے اور خاتون بیوہ جو ہے وہ بتائی جا رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بتایا جا رہا ہے کہ بلدیہ ٹاؤن کی یہ خاتون جو ہے وہ رہائشی تھی۔ مسیحی کمیونٹی سے اس خاتون کا تعلق بتایا جا رہا ہے، جبکہ پولیس کا یہ بھی کہنا ہے کہ خاتون مدینہ کالونی سے 22 نومبر کو لاپتہ ہوئی تھی اور مقتولہ کے بیٹے عادل مسیح کی جانب سے تھانے میں اس واقعے کی درخواست بھی دی گئی تھی، اور اس درخواست میں یہ بھی لکھا گیا تھا کہ وہ ایف آئی آر یا پھر کسی قسم کی کوئی قانونی کارروائی جو ہے وہ نہیں چاہتے، جس وجہ سے پولیس نے اس کیس پر جو ہے وہ تحقیقات نہیں کی تھی۔ البتہ گزشتہ روز جو ہے تشدد زدہ ہاتھ پیر بندی حالت میں اس خاتون کی لاش جو ہے وہ چائنا پورٹ کے قریب سے برآمد ہوئی تھی۔ پولیس حکام کا یہ کہنا ہے کہ شناخت مکمل ہونے کے بعد واقعے پر مختلف پہلوؤں سے تحقیقات جو ہے وہ کی جا رہی ہیں۔ جی بہت شکریہ احسان یونس تمام تر تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ اور اب بلیٹن میں بات کریں گے۔ کراچی پولیس چیف جاوید عالم اوڈو کہتے ہیں کراچی کے ڈسٹرکٹ سینٹرل سے اپنی پولیسنگ کا آغاز کیا۔ یہ 18واں پولیس اسٹیشن ہے جس میں کمانڈ اینڈ کنٹرول روم بنایا گیا ہے۔ کچھ کیمرے انتہائی جدید ہیں جن سے مانیٹرنگ آسان ہوگی۔ نمبر پلیٹس ریکگنیشن کیمرے بھی اس میں شامل ہیں۔ ان کے ثمرات آپ کو نظر آئیں گے۔ سیف سٹی کے ساتھ مستقبل میں یہ کیمرے منسلک ہو جائیں گے۔ میں اس زمانے کی 94 کی ٹریفک اور چیزوں کو دیکھ کے پریشان ہو گیا۔ میں نے کہا یہ کس طرح لوگ یہاں پہ ڈرائیونگ کرتے ہیں، لیکن کیونکہ سسٹم کے بارے میں کہا ہم نے، سیف سٹی کے بارے میں اور ان سب سسٹم کے بارے میں کراچی پولیس نے پہل کی کہ یہ ہمیں چاہیے اور ہمیں لگانا چاہیے، اور گورنمنٹ سے پلیڈ کیا، لیکن بدقسمتی سے وہ تھوڑا جو ڈیلے ہوا انہوں نے پہلے لگا دیا ساتھ ساتھ۔ اب میں جاتا ہوں تو ان کا ٹریفک کا سسٹم بہت ہی سیوک سینس بہتر ہے ہم سے، جبکہ وہ بہت ہی نچلے لیول پہ وہ ٹریفک کا نظام تھا ان کا، وہ اوپر لے آئے ساتھ ساتھ۔ تو شروع میں ضرور پرابلمز ہوں گے، شہریوں کو ہوں گے، پولیس کو ہوں گے، ان سسٹم کو چلانے والے، لیکن یہ کوئی حرف آخر نہیں۔ اس میں جو انٹرونشن، جو تبدیلی ہمیں کرنی پڑی، انشاءاللہ ہم آپ کے فیڈ بیک کی روشنی میں وہ کریں گے۔ وی آر اوپن ٹو اٹ، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں کہ الٹیمیٹلی کراچی کوئی بھی فارنر جب شہر میں اترے گا وہ کہے گا کہ یہ مہذب لوگوں کا شہر ہے، کیونکہ اگر کسی کو کوئی گیج کرنا ہوتا ہے کہ تہذیب اس شہر میں کتنی مہذب کتنے ہیں یہ لوگ یہاں کے، تو وہ ٹریفک دیکھ کر ہے۔ تو ٹریفک ابھی دیکھ کے تو بدقسمتی سے وہ اچھا تاثر نہیں لیتا، لیکن مجھے یقین ہے کہ فیوچر میں کراچی کے لیے جو کہ کراچی تہذیب کا ایک منبع رہا ہے، پورے ملک کو اس نے آئیڈیاز بھی دیے ہیں، تہذیب بھی دی ہے، ہر چیز دی ہے، تو انشاءاللہ یہ پھر دوبارہ پہل کرے گا اس چیز میں، اور سوک سینس ٹریفک کا کم از کم اس شہر میں دوبارہ واپس آ جائے گا۔ تو آپ سب کی بڑی مہربانی، کافی لمبی بات ہو گئی، میں شکریہ کرنا چاہوں گا
मुराद साहब का और उनकी पूरी टीम का मैं शुक्रिया करना चाहूँगा, सब मेंबरान जिन्होंने इसमें कंट्रीब्यूट किया। और लेकिन बाद में मैं अपनी पुलिस अफसरान को भी ये डायरेक्शन देना चाहूँगा और उनसे उम्मीद रखूँगा कि इस सिस्टम को चलाएं और इसके चला के ही आप इसकी अफादियत और फ़ायदा इससे इस्तेफादा कर सकते हैं। वरना कोई भी चीज़ अच्छे से अच्छी हो, अगर पड़ी है और उससे इस्तेफादा आप नहीं कर रहे तो फिर उस चीज़ के लगाने का कोई फ़ायदा नहीं। अब बात करेंगे शहर भर में पुलिस की मुख्तलिफ कार्रवाइयों के हवाले से। मुख्तलिफ कार्रवाइयों में एक जख्मी समेत 6 मुलजमान गिरफ्तार कर लिए गए। मनशियात फरोशी, भत्ताखोरी और हवाई फायरिंग के मुर्तकिब मुलजमान के खिलाफ कार्रवाइयां की गईं। इसी हवाले से मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। SIU पुलिस का भत्ताखोरों से मुबैना मुकाबला, 2 तरफा फायरिंग के नतीजे में 1 जख्मी समेत 4 भत्ताखोर मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए गए। मुलजिमान से असलहा, मोबाइल फोन्स, 2 मोटरसाइकिलें बरामद हुई। 2 मुलजिमान एहलकारों पर फायरिंग करते हुए फरार हो गए। मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दी जा रही हैं। दूसरी जानिब गडा पुलिस ने खुफिया इत्तला की बुनियाद पर मंशियात फरोश गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिम के कब्जे से आयश और फरोख्ती की रकम बरामद हुई। मुलजिम की शनाख्त अनवर खान के नाम से हुई। मुलजिम का साबिका मुजरिमाना रिकॉर्ड चेक किया जा रहा है। गिरफ्तार मुलजिम के खिलाफ ज़ाब्ते के तहत मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज कर दिया गया। मजीद बरां लैंडी पुलिस ने हवाई फायरिंग करने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिम की शनाख्त मुदस्सिर खान के नाम से हुई। गिरफ्तार मुलजिम के कब्जे से एक 9mm पिस्तौल, बीमा राउंड बरामद कर लिए गए। मुलजिम के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश के लिए शोबे तफ्तीश के हवाले कर दिया गया। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन वक्त हुआ एक ब्रेक का। आप रहे कराची के साथ। वेलकम बैक। बुलेटिन का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। खबर शामिल करेंगे सिंध मेडिकल फैकल्टी ने पैरा मेडिकल कोर्सेज के दाखिलों के इश्तिहार में अहम तब्दीलियां कर दी। दाखिला फॉर्म जमा करवाने की आखिरी तारीख में तौसी कर दी गई। नई तारीख 2 दिसंबर मुकर्रर की गई। ज़ेर इल्तवा फॉर्म और फीस जमा करवाने की आखिरी तारीख 5 दिसंबर मुकर्रर की गई। पैरामेडिकल कोर्सेज का एंट्री टेस्ट 14 दिसंबर को सुबह 11 से दोपहर 12 बजे तक होंगे। सिंध मेडिकल फैकल्टी का नोटिफिकेशन तमाम सरकारी और निजी इदारों को इरसाल किया गया। मजीद जानेंगे इमरान पीरजादा से। जी इमरान, बताइएगा। जी बिल्कुल, सिंध मेडिकल फैकल्टी ने सेशन 2025 और 26 की पैरामेडिकल रेगुलर बेंच में दाखिलों के हवाले से नई हिदायत और तारीखें जारी कर दी हैं। सिंध फैकल्टी के मुताबिक उम्मीदवारों के लिए फॉर्म जमा कराने की आखिरी तारीख 2 दिसंबर 2025 कर दी गई है, जबकि नोटिफिकेशन के मुताबिक जिन उम्मीदवारों के फॉर्म ज़ेरे इल्तवा हैं, इनके स्क्रूटनी और फीस जमा कराने की आखिरी तारीख 5 दिसंबर है। ताहम सिंध फैकल्टी ने दाखिले का एंट्री टेस्ट 14 इतवार 2025 को लेने का फैसला बरकरार रखा है, जो कि सुबह 11 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगा। नोटिफिकेशन पब्लिक, प्राइवेट और तमाम सरकारी इदारों को अरसाल कर दिया गया है। जी इमरान, ये बताइएगा कि इश्तिहार में अहम तब्दीलियां जो की गई हैं उनकी वजूहात क्या हैं? कुछ अर्सा आखिरी तारीख इनकी थी सितंबर 29 सितंबर थी। ताहम कुछ इनके टेक्निकल वजूहात की वजह से जो है तारीख में रद्द-ओ-बदल किया गया है। जी बहुत शुक्रिया इमरान पीरजादा, हमें आगाह कर रहे थे। और अब खबर शामिल करेंगे। शहरियों के लिए सफर करना सर दर्द बन गया है। मुख्तलिफ शाहराओं की तरह लियाकताबाद से एक्सपो सेंटर आने वाली शाहरा पर बदतरीन ट्रैफिक जाम। शहरी मिनटों का सफर घंटों में करने पर मजबूर है। इस हवाले से मजीद जानते हैं हफीज अंसारी से। जी हाँ, बिल्कुल है। शहर कराची के अंदर हम देखते हैं कि शाम होते ही जो मुख्तलिफ शाहराओं पर ट्रैफिक जाम की सूरत हाल पेश आती है। यही हम देख रहे हैं इस वक्त भी शहर की मुख्तलिफ सड़कों पर, किसी भी सड़क पर आप निकल जाएँ जो है ट्रैफिक जाम है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गुलशन इकबाल। ये लियाकताबाद जाने वाला, स्टेडियम से लियाकताबाद जाने वाली रोड है और लियाकताबाद से एक्सपो सेंटर आने वाली ये सड़क। मुख्तलिफ शाहराओं की तरह जो है ये रोड भी जो है ट्रैफिक जाम की सूरत हाल पेश कर रही है और लोग जो है
घंटों मगर मिनटों का सफ़र जो है घंटों में सफ़र करने पर मजबूर हैं। इस वक्त शहर की जो सूरत हाल है, अब ये ई चालान का जो सिलसिला शुरू हुआ है, जो कैमरों के ऊपर ही चालान जो है छोड़ दिए गए हैं, इसकी वजह से हम ये देखते हैं कि ट्रैफिक के वो कांस्टेबल्स, वो ऑफिसर्स जो मुख्तलिफ चौराहों पर, सड़कों पर नज़र आते थे ट्रैफिक कंट्रोल करते हुए, वो अब नज़र नहीं आ रहे हैं। इंतहाई कम तादाद जो है सड़कों पर जो है ट्रैफिक एहलकारों की नज़र आती है, जिसकी वजह से जो है ट्रैफिक जाम की सूरत हाल जो है उन सड़कों पर जहाँ पर जो है कैमरे वगैरह नहीं लगे हुए हैं, वहाँ पर जो है सूरत हाल ज़्यादा पेश आती है। और मुख्तलिफ सड़कों पर, जैसे कि अगर आप नॉर्थ कराची जा रहे हैं तो इस वक्त वो सड़क भी जो है ट्रैफिक जाम की सूरत हाल पेश कर रही है। इसी तरह ये सड़क भी लियाकताबाद पे तकरीबन चारों तरफ का, वो डाकाने की तरफ आप चले जाएँ या नाज़माबाद की तरफ चले जाएँ, ट्रैफिक जाम है। तो आवाम के लिए एक बड़ा मसला ये हो गया है, जहाँ टूटी फूटी सड़कें जो है बनाई जा रही हैं, बराए नाम बनाई जा रही हैं, जो कि किसी सिफारिशी सड़क अगर बनाने के लिए की जाती है तो वो सड़क बनाई जा रही है। कहीं VIP मूवमेंट होती है जिस सड़क से, वो सड़क बनाई जा रही है, लेकिन आम शहरी जिन सड़कों से सफ़र करते हैं वो अब भी टूट फूट का शिकार नज़र आ रही हैं। एक तरफ शहरी जो है टूटी फूटी सड़कों से सफ़र करने पर मजबूर हैं, दूसरी जानिब जो है ये ट्रैफिक जाम की सूरत हाल पेश आती है। तो शहर के अंदर शहरियों का यही कहना है कि अब हमारे लिए सफ़र करना इंतहाई मुश्किल हो गया है, लेकिन मजरूबी की हालत में जो है हम सफ़र करने पर मजबूर होते हैं। कामों से जब फरागत के बाद जो है लोग अपने घरों को जा रहे होते हैं या घरों से जो है दफातर की तरफ जाते हैं, उस वक्त ख़ास तौर पर जो है सड़कों पर ट्रैफिक जाम की सूरत हाल पेश आती है। यकीनन जो है जो दफ्तरी औकात में लोगों को पहुँचना चाहिए वो भी ताख़ीर से पहुँचते हैं, जिसकी वजह से कारोबार ज़िंदगी बुरी तरह से मुतासिर होता नज़र आता है। तो शहर की सूरत हाल इस वक्त यह है कि मुख्तलिफ सड़कों पर ट्रैफिक जाम है और लोग जो है ट्रैफिक जाम में फंसे हुए हैं। जी बहुत शुक्रिया हफीज़ अंसारी तमाम तर तफसीलात से आगाह करने के लिए। अहम खबर से आपको आगाह करेंगे। शाह लतीफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, स्ट्रीट क्राइम्स की वारदातों में मुलव्विस गिरोह गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए शहरी की निशानदही पर 4 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुल्जिमान 50 से जायद वारदातों में मुलव्विस निकले। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। शाह लतीफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, स्ट्रीट क्राइम्स की वारदातों में मुलव्विस गिरोह गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए शहरी की निशानदही पर 4 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया है। अहम खबर है, ये आपको आगाह कर रहे हैं। शाह लतीफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई के हवाले से मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे अयाज वारियों से। जी अयाज, बताइएगा। शाह लतीफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, स्ट्रीट क्राइम्स की वारदातों में मुलव्वस गिरोह गिरफ्तार कर लिए गए हैं। पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए शहरी की निशानदही पर 4 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार मुल्जिमान 50 से जायद वारदातों में मुलव्वस निकले हैं। पुलिस ने थाना शाह लतीफ के हदूद में नेशनल हाईवे की करीब से मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार मुल्जिमान के कब्जे से 2 पिस्टल बम राउंड, 4 छीनी हुई मोबाइल फोन और 2 चोरी शुदा मोटरसाइकिलें बरामद हुई हैं। गिरफ्तार मुल्जिमान की शनाख्त इरफान अली उर्फ बाबली अमीर, जमान उर्फ अमीर राजा अली और असलान के नाम से हुई है। गिरफ्तार मुल्जिमान शाह लतीफ टाउन समेत मुख्तलिफ मेरान हाईवे और दिगर इलाकों में भी स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में मुलव्वस रहे हैं। मुल्जिमान से बरामद होने वाली मोटरसाइकिल का रिकॉर्ड भी AVLC हुकाम से चेक किया जा रहा है, जबकि शाह लतीफ पुलिस की जानब से ज़ाब्ते के तहत कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। जी बहुत शुक्रिया। हमारे नुमाइंदे अयाज वारी हमें आगाह कर रहे थे। एक और अहम खबर से यहाँ को आगाह करेंगे। IG सिंध की जेर सदारत मंशियात और गुटखा माफियाज के खिलाफ इजलास हुआ। सूबे भर में मंशियात और गुटखा मावा के खिलाफ कार्रवाइयों में तेजी का फैसला किया गया। पुलिस की कार्रवाइयों पर आगाही मुहिम शुरू करने का फैसला। सहूलतकारों की फहरिस्तें अपडेट की जाएं। गिरफ्तार मुलजिम की मौसर और मजबूत तफ्तीश की हिदायत। IG सिंध की जेर सदारत मंशियात और गुटखा माफियाज के खिलाफ इजलास किया गया। सूबे भर में मंशियात और गुटखा मावा के खिलाफ कार्रवाइयों में तेजी का फैसला किया गया। इसी हवाले से मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे नूर इस्लाम से। जी नूर, बताइएगा। बिल्कुल, IG सिंध की ज़ेर सदारत मंशियात और गुटखा माफिया के खिलाफ इकदामात का जायजा इजलास आज हुआ है।
इजलास में एडिशनल आईजी कराची, डीआईजी सीटीडी, डीआईजी स्पेशल ब्रांच, डीआईजी हेडक्वार्टर ने शिरकत की, जबकि कराची समेत तमाम पुलिस डिवीज़न के डीआईजीज और एसएसपीज ने वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शिरकत की। इजलास में फैसला किया गया है कि मंशियात और गुटखा मावा माफियाज के खिलाफ मीडिया प्लेटफार्म पर आगाही मुहिम शुरू किया जाए ताकि अवामी ताउन बढ़ाया जा सके, जबकि डीआईजी स्पेशल ब्रांच ने सूबे भर में जारी मुहिम कार्रवाइयों और खुसूसी इकदामात के हवाले से ब्रीफिंग दी और एडिशनल आईजी कराची ने हिदायत की है कि स्पेशल ब्रांच मंशियात और गुटखा मावा माफियाज के सहूलतकारों की तमाम फहरिस्तों का जायजा लेकर इन्हें अपडेट करे। साथ ही अजला के सतह पर बेहतर कारकर्दगी दिखाने वाले अफसरान की हौसला अफजाई पर जोर दिया गया है। एडिशनल आईजी स्पेशल ब्रांच ने कहा है कि नार्कोटिक्स और गुटखा मावा केसेस की तफ्तीश गैर मामूली और मौसर बनाई जाए ताकि गिरफ्तार मुल्जिमान की अदालतों से जमानत की कोशिशों को नाकाम बनाया जा सके। इस मौके पर आईजी सिंध ने खुसूसी हिदायत जारी की है कि मुल्जिमान के खिलाफ शवाहिद इकट्ठे करने के अमल में बेहतरी लाई जाए, साथ ही मुल्जिमान के खिलाफ गवाहान के बयानात भी हासिल किए जाए और इन अमूर को हर सूरत यकीनी बनाया जाए। आईजी सिंध ने वाज़ा हिदायत की है कि मंशियात की बरामदगी की वीडियो मौके पर ही बनाई जाए। रिकवरी की डिजिटल फुटेज न सिर्फ तफ्तीश मजबूत बनाएगी बल्कि अदालतों में सजाएं यकीनी होंगी, जबकि तमाम डीआईजीज को हिदायत की गई है कि वो अपने डिवीजन्स में बेहतरीन अफसरान की नोटिफिकेशन कमेटियां तश्कील दे और बेहतरीन अफसरान को तफ्तीशी टीमों में शामिल किया जाए। गफलत के मुर्तकिब तफ्तीशी अफसरान की फहरिस्तें मरतब की जाए और उनके खिलाफ सख्त महकमा जाती कार्रवाई की जाए। इजलास में आईजी सिंध ने कराची और हैदराबाद डिवीजन की शानदार कारकर्दगी को सराहते हुए कहा कि नार्कोटिक्स और गुटखा मावा माफियाज के खिलाफ पुलिस की कामयाबियां बेहतरीन हिकमत अमली का नतीजा है। कार्रवाइयों को मजीद तेज करने की जरूरत है। जी बहुत शुक्रिया नूर इस्लाम तमाम तर तफसीलात से आगाह करने के लिए। तफसीली खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। आप रहे कराची के साथ। वेलकम बैक। सोने के निर्ख के हवाले से खबर शामिल करेंगे। आपको बताएंगे आलमी और मकामी मार्केट में सोने की कीमत मुसलसल दूसरे रोज बढ़ गई है। पाकिस्तान में 24 कैरेट फी तोला सोना 2300 रुपए महंगा हो गया। नई कीमत 4,38,862 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोना 1972 रुपए इजाफे के बाद 3,76,253 रुपए का हो गया। फी तोला चांदी की कीमत में भी 60 रुपए इजाफा हुआ। नई कीमत 5,482 रुपए हुई। आलमी मार्केट में फी ऑन्स सोना $23 महंगा होकर $4,165 का हो गया। आपको बताते चले आलमी और मकामी मार्केट में सोने की कीमत मुसलसल दूसरे रोज बढ़ गई। पाकिस्तान में 24 कैरेट फी तोला सोना 2300 रुपए महंगा हो गया। नई कीमत 4,38,862 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोना 1972 रुपए इजाफे के बाद 3,76,253 का हो गया। फी तोला चांदी की कीमत में भी 60 रुपए इजाफा हुआ। नई कीमत 5,482 रुपए हो गई। आलमी मार्केट में फी ऑन सोना $23 महंगा होकर $4,165 रुपए डॉलर का हो गया। सोने के निर्ख के हवाले से खबर शामिल करेंगे। आपको बताएंगे आलमी और मार्केट में सोने की कीमत मुसलसल दूसरे रोज बढ़ गई। पाकिस्तान में 24 कैरेट फी तोला सोना 2300 रुपए महंगा हो गया। नई कीमत 4,38,862 रुपए हो गई। और अब खबर शामिल करेंगे सैफी बुरहानी यूनिवर्सिटी में आज शानदार ओपन हाउस का इनेकाद किया गया, जहां हजारों तलबा तालिबात और वालिदैन ने शिरकत की। ये तकरीब नौजवानों के लिए मुस्तकबिल के तालीमी और प्रोफेशनल मौके को जानने का बेहतरीन प्लेटफॉर्म साबित हुई। आपको बताएंगे शुरा का यूनिवर्सिटी के तमाम शोबों, डिपार्टमेंट्स और जदीद तरीन सहूलियात का तफसीली दौरा कराया गया। एग्जीक्यूटिव ट्रस्टी डॉक्टर जावेद, CEO करीम हातिम और CEO डॉक्टर कन्नर भी इस मौके पर मौजूद थे। तलबा ने असातिज़ा से बराह रास्त रहनुमाई ली और कैरियर के इंतखाब में कीमती मशवरे हासिल किए। हेल्थ केयर और टेक्नोलॉजी से मुतालिक पैनल डिस्कशंस में माहिरीन ने नए रुझानात और आगे बढ़ने के मौके पर रोशनी डाली। इस ओपन हाउस को इसके मस्बत माहौल और मुफीद मालूमात के बायस वालिदैन और तलबा की जानिब से खूब सराहा गया। आज का जो दिन था हमारे लिए बड़ी
اہمیت کا دن تھا کیونکہ ہم نے فرسٹ اوپن ہاؤس کیا ہے یونیورسٹی میں بچوں کے لیے، کیونکہ آنے والے وقت میں ہمارا جو شروع ہو رہا پروگرام، جو فرسٹ پروگرام ہوگا سیفی برانی یونیورسٹی کا، وہ ہوگا ڈاکٹر آف فزیوتھراپی، فزیکل تھراپی. اور آج فارچونیٹلی دن بھی ورلڈ وائڈ جو ہے فزیوتھراپی کا دن ہے جو منایا جاتا ہے. تو اوپن ہاؤس تھا، بچے ہمارے پاس کم سے کم ڈفرینٹ کالج سے، اسکولوں سے، یونیورسٹی سے ڈفرینٹ مور دین 1000 بچے یہاں پر آئے. انہوں نے وزٹ کیا، دیکھا، اور دے وانٹ ٹو جوائن دا یونیورسٹی فار دا ڈی پی ٹی پروگرام. سیفی برانی یونیورسٹی کا جو مقصد تھا بنانے کا، جو مقصد ہے انفیکٹ بنانے کا، وہ ایک کوالٹی ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ جو ہے باقی الائڈ فیسیلیٹیز ہے، جیسے ہیلتھ کی جو فیسیلیٹیز ہے وہ بھی ساتھ ساتھ میں جو ہے وہ مہیا کرنا ہے. اور جو ہمارے کمیونٹی لیڈر ہیں سیدنا صاحب، ان کا یہ انیشیٹو ہے. یہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے سیفی برانی یونیورسٹی، جو کہ ان کے پیشوا ہیں، روحانی پیشوا سیدنا مفضل، ان کا یہ پروجیکٹ ہے. اور اس میں بیسیکلی پاکستان میں، کراچی میں تعلیم کو فروغ دینا ان کا پہلا ایک سٹیپ ہے یہ ٹورڈز ایجوکیشن. آج کا جو انٹریکٹیو سیشن تھا، اٹ واز ایکچولی بیسڈ آن ہیلدی ایجنگ. سو یہاں پہ اگر ہم ویسٹرن کنٹریز کو ایسٹرن کنٹریز کے ساتھ اگر ہم کمپیئر کرتے ہیں تو وہاں پہ جو 50+ جو لوگ ہوتے ہیں وہ اتنی جلدی ایج نہیں کرتے، بیکاز دے آر لیونگ اے ہیلدی لائف، دے آر فالوئنگ فزیکل تھراپی پروٹوکولز، حرکت میں برکت والے کانسیپٹس کو اپناتے ہیں. لیکن یہاں پہ ہمارے جتنے بھی بزرگ ہوتے ہیں، 50+ لوگ ہوتے ہیں، وہ ریٹائرمنٹ پلان کے ساتھ گھر پہ بیٹھ جاتے ہیں. یہی ہوتا ہے جبکہ انہیں خود اٹھ کے کام کرنا چاہیے اور اپنے جو جوائنٹس ہیں ان کو موومنٹ کے تھرو جو ہے انہیں اسٹیبلائز اور موبلائز رکھنا چاہیے. سردی کی شدت میں اضافہ ہوتے ہی شہریوں کی دلچسپی مچھلی کی جانب بڑھ گئی. مچھلی کی دکانوں میں آج خاصی گہما گہمی دیکھنے میں آ رہی ہے. لوگ بڑے شوق سے مختلف اقسام کی فش خریدنے رہے ہیں. مزید جانتے ہیں نمائندہ فہیم سیلرا سے، جو اس وقت دکاندار کے ساتھ موجود ہیں. جی فہیم، بتائیے گا. جی ہاں بالکل، سردیوں میں اضافہ ہوتے ہی شہریوں کا جو ہے مچھلیوں کی دکانوں پر رجحان بڑھ گیا ہے. مچھلیوں کی جو مانگ میں بہت اضافہ ہو گیا. ہم اس وقت دکاندار کے ساتھ موجود ہیں، ہم ان سے بات کریں گے کون کون سی مچھلیاں جو زیادہ بک رہی ہیں اور کس قدر جو ہے شہریوں کا یہاں رش دیکھنے میں نظر آ رہا ہے. یہ بتائیے گا کس قدر یہاں پہ شہری آ رہے ہیں، کون کون سی مچھلیاں جو ہیں زیادہ بک رہی ہیں. السلام علیکم. ہمارے پاس جو نا الحمدللہ مختلف قسم کا فش ہوتا ہے. تو ہمارے پاس جو سب سے زیادہ رننگ آئٹم ہے وہ ہے ہمارا ڈانگری ہے، ہیرا ہے، اس کے علاوہ مشکا ہے، وائٹ کون ہے، اس کے علاوہ سرمئی ہے. تو فنگر فش تو ویسے نارمل لوگ کھاتے ہیں. تو انشاءاللہ گرل فرائی ہمارے پاس دونوں آئٹم ہے. یہ کہ ہمارے کو تھوڑا دشواری ہو رہا ہے کہ KMC کا مسئلہ ہے، اس وجہ سے ہم نے فرینڈ میں جو نا صرف دکان کے سامنے کاؤنٹر لگا ہوا، آپ آ جاؤ وزٹ کر لو، وہی دکان کھلا ہوا ہے. اتنا بڑا کوئی ایشو نہیں ہے بھائی. تو شہری کتنی تعداد میں آ رہے ہیں؟ بہت زیادہ شہری آ رہے ہیں یا کم ہے؟ ویسے پچھلا سال کی نسبت سے جو نا تھوڑا سا کمی پڑا ہے ہمارا سیل میں، تو اس لیے کمی پڑا ہے. ہمارا کاؤنٹر جو نا فرینڈ میں ہوتا تھا پہلے، تو اس ٹائم جو نا تھوڑا سا مسئلہ ہوا KMC کا مسئلہ کے لیے. اب جو نا تقریباً 20% جو نا ہمارے پاس سیل میں فرق پڑا ہے. ہاں جی بہت شکریہ. جیسا کہ دکانداروں کا بھی یہی کہنا ہے کہ شہری سردیوں کے ساتھ ساتھ یہاں پہ بہت زیادہ تعداد میں آتے ہیں، اپنی پسند کی جو مچھلیاں وہ بھی خرید و فروخت کرتے ہیں. اور اسی طرح جو اگر سردیوں میں زیادہ اضافہ اگلے آنے والے جو چند ہفتے ہیں، ان ہفتوں میں بھی جو ہے شہریوں کا رجحان بہت زیادہ مچھلیوں کی طرف بڑھتا ہے. اسی طرح سے شہری دیگر اشیاء جیسا کہ خشک میوہ جات ہیں ان کی طرف بھی جو ہے ان کی خرید و فروخت بھی کرتے رہتے ہیں. اسی طرح جی بہت شکریہ فہیم سیلرا ہمیں براہ راست آگاہ کرنے کے لیے. نیوز بلیٹن سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں میٹرو ون نیوز.